Hello friends, welcome back to the Hindu analysis. We'll be discussing the Hindu newspaper for today, August 18th. So let's get started. चलिए शुरू करते हैं. Okay, so the first article which you will see on the front page is this: Taliban vows to honor women right within Islamic law. So what this article tells us is that Taliban spokesperson has made a few promises where it says that Taliban intends to honor women rights within Islamic law purview. It intends to forgive all those who have opposed it in the past, supporters of earlier Afghan government, and it also vows, or let's say intends to give independence to media and journalists as long as they don't go against their country. So basically they have tried to project a modern image of Taliban, okay, which is being regarded by media as the publicity blitz. As you can see here, it's being referred to as a publicity blitz just to convince the world that you don't need to be scared of us or afraid of us, and will be a stabilizing force instead of destabilizing the region. So this is what this article tells. So basically जो तालिबान है, they are trying to project themselves as good governance rather than being a threat to the world community. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं. Yes, so next article which you will see on the front page is this, that Odisha government will sponsor hockey for 10 more years. So we all know that Odisha government is sponsoring Indian hockey teams, both men and women's hockey team. Or after the spectacular performance by these teams in Tokyo Olympics, Odisha government has decided to continue this initiative for 10 more years. ठीक है, तो Odisha government 10 और साल इन टीम्स को स्पॉन्सर करेगी, मेंस हॉकी टीम को और विमेंस हॉकी टीम को. ठीक है, इसके अलावा कुछ कैश प्राइजेस भी दिए गए हैं. एवरी प्लेयर हैज़ बीन अवॉर्डेड 10 lakhs एंड सपोर्ट स्टाफ हैज़ बीन अवॉर्डेड 5 lakh both for men's team and women's hockey team. So this is an initiative taken by Odisha CM. Who is Odisha CM? Mr. नवीन पटनायक. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. ओके, then there is this another important news. HAL signs deal with GE Aviation. HAL is हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. इन्होंने GE Aviation के साथ एक डील साइन की है. हमारे जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसके लिए एयरक्राफ्ट इंजन और सपोर्ट सर्विसेज प्रोक्योर करने के लिए ये डील साइन की गई है. तो GE Aviation will provide aircraft engines and support services for our light combat aircraft Tejas. For that, HAL has signed a deal worth $716 million. So all these facts are highlighted here. ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें मैंने बोल्ड किया हुआ है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था. यू कैन मेक अ नोट ऑफ दीज. ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हैज साइंड अ डील वर्थ $716 million with GE Aviation for procurement of aircraft engines for Tejas light combat aircraft. Okay, so this is one more interesting update from the defense section. Okay, फिर ये एक आर्टिकल आप आज के न्यूज़पेपर में देखेंगे. सेंटर नॉट फॉर फॉर्मिंग सिक्योरिटी फोर्स टू प्रोटेक्ट जुडिशरी एंड कोर्ट्स. तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड फॉर एन ओपिनियन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वेदर दे शुड फॉर्म अ सेंट्रल फोर्स समथिंग लाइक CRPF और अ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, कि आप जो हैं वो एक सेंट्रल फोर्स बनाए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जजेस, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जुडिशरी, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कोर्ट्स. ठीक है, अभी रिसेंटली झारखंड में एक जज का मर्डर हो गया था. ठीक है, आफ्टर दैट द कोर्ट टेक अ सुओ मोटो, यानी ऑन इट्स ओन cognizance, and they asked the central government whether they can provide security, and what the central government has replied is कि it is advisable that security is taken care at the state level. Why? तो उन्होंने स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने दी जानी चाहिए, बिकॉज हर स्टेट के सरकमस्टांसेस अलग है, थ्रेट्स अलग हैं. कहीं नक्सलाइट्स हैं, कहीं टेररिस्ट हैं, कहीं कोई और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं. तो ये स्टेट पुलिस ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगी और स्टेट पुलिस ज़्यादा अच्छे से सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा पाएंगी.
और इवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो पुलिस है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है. दैट इज वाई दीज टू रीजंस आर गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे सेड दैट देयर इज अ डिटेल्ड गाइडलाइन for protection of judiciary and courts by Ministry of Home Affairs. The only thing is that this guideline is not implemented properly, so all we need to do is to make sure that this guideline is implemented properly to ensure that judiciary and courts can be protected, but the onus or the accountability should lie with the state police. Okay, so this is one interesting development. Okay, so all of you play Sudoku, right? ठीक है, सब ने सुडोकू कभी ना कभी किया होगा. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है. क्रॉसवर्ड, सुडोकू, ये न्यूज़पेपर्स में आप लोग करते होंगे, ठीक है. तो ये इफ़ आई आस्क यू दैट हु इन्वेंटेड सुडोकू, किसने सुडोकू शुरू किया था, सो देयर इज दिस गाय कॉल्ड माकी काजी इन जापान हु इन्वेंटेड सुडोकू एंड ही डाइड रिसेंटली, ठीक है. he started a company called Nikoli, and in 1983 he came up with this idea of Sudoku. Basically the word Sudoku means number and single, ठीक है. सुडोकू में आप सिंगल नंबर्स कर सकते हैं ना, 0 to 9, ठीक है. तो इन जापानीज इट मीन्स नंबर शुड बी सिंगल, ठीक है. और जो माकी काजी साहब थे, इन्होंने ये गेम इन्वेंट किया. ही इज़ ऑल्सो नोन एज गॉड फादर ऑफ सुडोकू एंड ही died recently. He founded this company in 1983 and came up with the idea for Sudoku about the same time. So all these facts should be made note of, ठीक है. तो another interesting update. Let's look at the next one. Okay, do you know about SEBI? What is the job of SEBI? Can you tell me the full form of SEBI? Okay, let me tell you. So SEBI is the markets regulator. The full form is Securities and Exchange Board of India, ठीक है. It regulates capital markets, commodity markets, ठीक है, और derivative markets, mutual funds, ठीक है. तो जो SEBI है, they have recently modified a guideline of theirs. So what they have announced is that the post IPO lock-in for promoters will be reduced from 3 months to 18 days. अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ. What is an IPO? Initial Public Offer. जब कोई कंपनी कैपिटल मार्केट्स में अपने शेयर्स इशू करती है, तो जो फर्स्ट टाइम जब वो पहली बार ऐसा करती है, जब वो लिस्ट होती है, तो उस ऑफ़र को कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, ठीक है. उसके बाद जब भी वो कभी शेयर्स इशू करती है, उसे FPO कहा जाता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ़र. तो जो पहला इशू होता है उसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर. फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने जोमेटो IPO के बारे में सुना होगा, ठीक है. तो पहले क्या गाइडलाइन थी कि जो IPO है उसमें कुछ सब्सक्रिप्शन प्रमोटर का होता है, प्रमोटर ने कुछ अपना पैसा लगाया होता है. वो पैसा मतलब ऐसा नहीं कि आपने आज शेयर्स में पैसा लगाया एंड यू एग्जिट बिफोर 3 years. तो प्रोमोटर्स कुड नॉट एग्जिट बिफोर 3 years. अब सेबी ने कहा है कि कुछ सर्कमस्टांसेस को छोड़ करके बचे हुए सर्कमस्टांसेस में आप 18 months के बाद एग्जिट कर सकते हो, ठीक है. मैं सर्कमस्टांसेस भी बता देता हूँ. अगर आपने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसी प्रोजेक्ट के कैपेक्स के लिए आप फाइनेंस रेस कर रहे हो, तो आप एग्जिट नहीं कर सकते. अदरवाइज जो प्रोमोटर है वो अपने शेयर्स सेल कर सकता है आफ्टर 18 months, ठीक है. सो दिस इज वन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट. सो सेबी हैज रिड्यूस द मिनिमम लॉक इन पीरियड फ्रॉम 3 years to 18 months, ठीक है. तो सेबी के बारे में हमें पता चला, सेबी इज कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर. जो भी हमारे स्टॉक मार्केट्स हैं, हमारे बॉन्ड मार्केट्स हैं, हमारे डेरिवेटिव्स हैं, हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, इन सब को रेगुलेट करने का काम, इनके लिए गाइडलाइन बनाने का काम सेबी का है, ठीक है. जिस तरह से बैंक्स को RBI रेगुलेट करता है, उसी तरह से मार्केट्स को सेबी रेगुलेट करता है. नाउ विल टॉक अबाउट एडिटोरियल्स, ठीक है. एडिटोरियल सेक्शन में ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, जो मेन आर्टिकल आज का है, स्क्रिप्ट ऑफ न्यू एंड गेम इन अफगानिस्तान. देखो आर्टिकल बहुत बड़ा है, हमारे काम की इन्फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है. मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो तालिबान पे बना चुका हूँ, आप उसे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है. नाउ ये जो आर्टिकल है, ये इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारा टेक अवे पार्ट है, वो ये है कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ तालिबान कैप्चरिंग अफगानिस्तान, ठीक है. एक बार तालिबान के राज हो गया तो उसमें दुनिया के लिए, इंडिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ मैंने हाईलाइट किए. तो पेविंग द वे फॉर टेरर, व्हाट इट सेज इज कि दुनिया में कुछ कंट्रीज़ हैं जो तालिबान को सपोर्ट कर रही हैं. कंट्रीज़ लाइक रशिया,
चाइना, पाकिस्तान जो उनको बैक कर रही हैं, और यूएसए ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है अपनी फोर्सेस हटा करके। एंड बेसिकली दिस इज़ वेरी सैड बिकॉज इट पेव्स द वे फॉर टेरर। आगे जाकर आतंक बढ़ेगा, टेरर बढ़ेगा, ठीक है। और उन्होंने, इट ब्लेम्स यूएसए कम्प्लीटली। इट सेज कि यूएसए ने अफगानिस्तान को जिस स्टेज पे छोड़ा है वो उससे भी ज़्यादा ख़राब है जिस स्टेज पे वो आए थे, ठीक है। तो व्हाट इट सेज इज़ कि आज अब एक अच्छा अफगानिस्तान, एक मॉडर्न कंट्री बनने के चांसेस लगभग ख़त्म हो गए। इट वर्चुअली स्पेल्स द डेथ नेल। इट सेज दैट सिचुएशन विल एनकरेज टेरर ग्रुप्स। फिर ये कहते हैं ओल्ड थ्रेट्स में रीसरफेस, जैसा मैंने आपको वीडियो में भी बात की है कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, ISIS, अलकायदा, ये सब ऑलरेडी एक्टिव हो गए हैं और ये रीग्रुप हो रहे हैं। यार अफगानिस्तान कैन बी द हब फॉर देयर ट्रेनिंग कैंप्स, फॉर देयर टेरर एक्टिविटीज़। तो जो पुराने थ्रेट्स थे, जो इवन जो पुराने टेररिस्ट ग्रुप्स थे, दे विल नाउ गेट अ बैकिंग एंड दिस विल डिस्टेबलाइज द एंटायर रीजन। देन इट सेज टेक्स फॉर इंडिया एंड ईरान। तो इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम रहा है कि इंडिया जो था वो इट वाज, जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट अब ख़त्म हो गई है, द हामिद कारज़ई गवर्नमेंट और द अशरफ गनी गवर्नमेंट, तो ये इंडिया के फ्रेंडली कंट्री थी। हमारे बड़े फ्रेंडली रिलेशंस थे अफ़गानिस्तान में। हमने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स किए थे, सलमा डैम हमने बनाया था। अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट, काबुल की जो पार्लियामेंट है वो इंडिया ने बनाई थी, वहाँ पे अभी भी एक अटल बिहारी वाजपेयी ब्लॉक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली तालिबान के साथ वो चीज़ हमारे एक एंटी है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ विद ईरान। तो ईरान इज़ अ शिया डोमिनेटेड कंट्री, तालिबान और अफ़गानिस्तान इज़ लार्जली अ सुन्नी डोमिनेटेड पॉपुलेशन। तो वो सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट से ईरान के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इंडिया और ईरान के लिए प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स हैं बाकी कंट्रीज़ को भी, जैसे पाकिस्तान इज़ स्कैर्ड ऑफ तहरीक तालिबान। तहरीक तालिबान had links with Taliban, then the neighboring countries will be wary of migration की, जो अफ़गान्स भाग रहे हैं वहाँ से, they are fleeing left, right and center। तो जो नियरिंग, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, they will all be wary of migration। So there are huge stakes involved। So this article throws light on some of them। It's a lengthy read, some points are useful to us, which I have summed up now. But I really like a couple of articles in today's newspaper. One is this Doctor at the Door. It tells us about a scheme in Tamil Nadu. Recently Tamil Nadu government ने एक scheme launch की है। scheme का नाम है, in Tamil it is Makkalai Thedi Marvam scheme। So what is this scheme about? This scheme is about non-communicable diseases, ठीक है। वो diseases जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती, ठीक है। diseases like diabetes, hypertension, ठीक है, cancer, diseases like kidney diseases, ठीक है। So all these they have identified 10 non-NCDs, non-communicable diseases, और उनका इनिशिएटिव क्या है कि एक पॉपुलेशन स्क्रीनिंग की जाए, ठीक है। जो भी स्टेट में 45 प्लस के लोग हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने इनिशियली ये स्कीम शुरू की है कि 45 प्लस की जो भी पॉपुलेशन है, दे ऑल शुड बी स्क्रीन्ड फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। एंड वंस यू आइडेंटिफाई देम, सो द स्टेट शुड टेक केयर टू सप्लाई मेडिसिन टू देम। दे शुड बी सप्लाइड मेडिसिन एट देयर डोर, ठीक है। इट्स लाइक हेल्थ केयर कमिंग टू योर डोर। आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, डॉक्टर इज कमिंग टू योर डोर, ओके। So instead of playing a reactive role, the government is playing a proactive role, ठीक है, कि we will take care of you, we will identify whether you are ill, and once we identify you are ill, we will ensure that you get proper medical assistance। and this is especially important in these times, pandemic times, जब अस्पतालों के साथ हमारा कनेक्ट थोड़ा कम हो गया है। sometimes we don't have access to health care in certain areas। तो this is a very important scheme, and some interesting points being raised here। For example, it says that India में there is survey in 2016 which says 55% of total diseases are NCDs, ठीक है। Generally our perception is कि ज़्यादातर लोग क्या मरते हैं, communicable diseases से। तो कोविड हो गया, एड्स है, स्वाइन फ्लू है, मलेरिया है, ठीक है। So we think डेंगू है, कोलेरा है, ठीक है। So we say that नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से 55% जो टोटल डिजीज बर्डन है, दैट इज बिकॉज ऑफ
non-communicable diseases, and that is why these diseases are important. So we tried this kind of a thing with tuberculosis. If you remember, there is a scheme called DOTS, जहाँ पे वो टीबी की दवाइयाँ टीबी के मरीजों तक पहुँचाई जाती थी. Now similar kind of a scheme for 10 prominent NCDs Tamil Nadu government has started, and other states may soon follow the suit, which is a nice model. So this is something notable which is there in today's newspaper. तो आप ये article पढ़ सकते हैं. It's a nice article, small article. Now this is a very interesting article. थोड़ा एक it's a nice business opportunity also. More feed, better productivity. So what it says is that the government has come up with a thing called the submission on fodder and feed. What is this? So some really interesting insights I'll tell you. Let's. So first of all, it gives a background कि इंडिया में अगर आप देखें चारा जो जिसे हम कहते हैं जो फीड है, फॉडर है, फीड है, ठीक है. अब आपको आपके पास बहुत सारा कैटल है, उसको खिलाने के लिए आपको चाहिए रहेगा फॉडर एंड फीड, राइट. तो फॉर एवरी 100 kg वी आर शॉर्ट ऑफ 23.4 kg of dry fodder, 11.24 kg of green fodder and 28.9 kg of concentrated feed. That means जितना चारा हमारे को चाहिए अपने कैटल्स के लिए उतना चारा है नहीं. We don't have enough fodder, we don't have enough feed. तो फिर क्या होता है उसका नतीजा कि जो हमारा मिल्क प्रोडक्टिविटी है दैट सफर्स. अब आप गाय को खिलाओगे नहीं तो दूध कहाँ से आएगा, राइट. तो 20 to 60% लोअर देन द ग्लोबल एवरेज. तो दुनिया का जो एवरेज है कि एवरेज एक गाय जितना दूध देती है, हमारे यहाँ वो 20 to 60% लोअर है, ठीक है. और ये तब है जब तकरीबन 13 करोड़ फार्मर्स लाइव स्टॉक पे डिपेंडेंट है, ठीक है. और काफ़ी सारे फार्मर्स के साथ क्या होता है कि अनाज और मवेशी दोनों चल रहे हैं, ठीक है. अगर क्रॉप फेलियर हो गया, मानसून ख़राब रहा, फसल नहीं हुई, तो जो भी उनके गाय भैंस हैं उनके दूध वगैरह बेच करके या उनका काम चल जाएगा. बट अगर ये भी प्रोडक्टिविटी नहीं रही तो उनके लिए दोनों प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है. 200 मिलियन इंडियंस आर इन्वॉल्व इन डेयरी एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग. इतनी बड़ी संख्या इस पर डिपेंडेंट होने के बावजूद दे आर नॉट एबल टू रीप द प्रॉपर बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. वाई? बिकॉज ऑफ लो सप्लाई ऑफ फॉडर एंड फीड. तो किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए क्या होता है, सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम. सो देयर इज अ प्रॉब्लम हियर कि इनफ फॉडर नहीं है, इनफ फीड नहीं है, जानवरों के लिए इनफ खाना नहीं है. अब इफ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, राइट, दैट्स व्हाट बिजनेसेस डू, दे सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट. अब हाउ कैन यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक काम करते हैं, वी विल प्रोवाइड सब्सिडी, वी विल प्रोवाइड बेनिफिट्स टू दोज हु वर्क इन दिस डायरेक्शन. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड साइलेज. साइलेज क्या होता है कि अब एक और प्रॉब्लम चारे के साथ क्या कि हरी घास हमारे देश में प्रैक्टिकली 3 महीने के अंदर ही उगती है, ठीक है. तो अब खाने के लिए तो 12 महीने चाहिए, तो उसको फर्मेंट करके साइलेज बनाया जाता है, ठीक है. सो यू फर्मेंट इट, यू मेक साइलेज विच कैन बी फेड टू कैटल. तो दोज हु विल मेक साइलेज विल गेट 50% कैपिटल सब्सिडी अप टू ₹50 लाख बाय द गवर्नमेंट. अब आप मशीनरी खरीदना चाहते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहते हो, जो भी आपको सेटअप करना है, गवर्नमेंट विल गिव यू 50% कैपिटल सब्सिडी अप टू ₹50 लाख, ठीक है. यू मेक साइलेज, और साइलेज के बिकने में क्या होता है, आप अनाज बेचने जाओगे, ₹1 लगाने पे ₹1.20 का फायदा होगा, ठीक है. देयर इज दिस स्टडी विच सेज कि इफ यू ग्रो क्रॉप्स, इफ यू इन्वेस्ट ₹1 यू विल गेट 1.20. इफ यू वर्क फॉर साइलेज यू विल गेट 1.60. ₹1 पे ₹1.60 का फायदा. दैट मीन्स द प्रॉफिट मार्जिन आर ऑल्सो हाई. तो गवर्नमेंट का आइडिया क्या है, आई विल रिड्यूस द कॉस्ट फॉर यू, आई विल मेक द बिजनेस ईजी फॉर यू. You produce the silage, sell it to farmers and the cattle rearers basically who need this silage and aid in the development process, ठीक है. तो ये एक मिशन उन्होंने शुरू किया, सब मिशन ऑन फॉडर एंड फीड, जिसके तहत गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इंसेंटिव सब्सिडी टू दोज हु विल प्रोड्यूस साइलेज एंड सेल टू द कैटल रियरर्स, ठीक है. सो इट इज अ विन विन सिचुएशन. सो गवर्नमेंट गेट्स डेवलपमेंट, द प्रोड्यूसर अर्न्स प्रॉफिट, and the farmer gets the fodder which he or she needs to feed to the cattle, ठीक है. तो that's what I was telling you. A major challenge in the feed sector emanates from the fact that good quality fodder is available for 3 months, and ideal solution would be to ferment green fodder and convert it into silage, ठीक है.
The idea is that farmers should be able to grow the green fodder between 2 crop seasons, and entrepreneurs can then convert it into silage and sell it to nearby markets at a low cost. Because government का idea क्या है कि if we promote it enough, there will be too many producers, too many startups producing this silage, which will bring down the input cost. ज़्यादा production होगा, ज़्यादा supply होगी तो automatically price कम हो जाएगा, तो farmer के लिए भी benefit है. So that's what the government is aiming at. So it's a nice article on editorial section, you can find the feed one. And again, I want you to make a note of all the important points. This is it from my side for today's Hindu, and I'll see you guys for tomorrow's analysis. Thank you.